dear students, how are you all? I hope you all are fine and you all are doing great. Welcome to your science class. I'm your science teacher and from now on I'll be teaching you all science. So let's start today's class with chapter 1, that is parts of a plant. In today's class we are going to learn about root, shoot, leaves, flowers. Now look at the pictures and answer the following questions. Take the part of plant which usually grows underground. So we have to take the part of plant जो कि कहाँ grow होता है underground. So roots, and here we are having stems. So these roots only grow under the ground. Name the parts of plant which are eaten commonly. Give examples. So we have to give the parts of the plant which are eaten. So bachcho, first is root. Example of it will be radish. Then we eat stem. Example of it will be potato. We eat leaves. Example, spinach. So बच्चों, we eat root, stem and leaves. Also, we eat fruits जो कि किससे बनते हैं बच्चों? Flower से. Which part of a plant transports water and nutrients from roots to leaves? So stem transports water and nutrients from roots to leaves. Which part of a plant mainly helps in preparing food for the plant? So बच्चों, कौन होता है वो जो plant के लिए food बनाता है? That is leaves. Now, plants are living things that need air, water, food to grow. So बच्चों, plants को क्या चाहिए होता है? Air, water, food, जिससे वो grow कर सकते हैं. Animals की तरह, unlike animals, plants can make their own food. तो बच्चों, जैसे कि animals अपना खाना खुद नहीं बना पाते, but plants अपना खाना खुद बना पाते हैं. And बच्चों, animals किसके ऊपर rely करते हैं? वो plants के ऊपर rely करते हैं for their nutrition. And बच्चों, प्लांट्स जो है वो डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना है एंड हर पार्ट का अपना एक रोल होता है. Whenever you will go to a garden and you will look at a plant, आप नोटिस करोगे दो मेन पार्ट्स जो कि क्या होते हैं? रूट एंड शूट. ना बच्चों, रूट इज द पार्ट दैट ग्रोज अंडरग्राउंड एंड रूट कहाँ ग्रो होती है? अंडरग्राउंड. वाइल शूट जो है वो पार्ट होता है प्लांट का दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड. Shoot includes branches, leaves, buds, flowers and fruits. So बच्चों, what all does shoot includes branches, leaves, buds, flowers and fruits. Now let's learn more about each of these parts one by one. Firstly, we will deal with root. Root जो है बच्चों वो क्या होता है? Important part होता है plant का. Even though we cannot see it because root कहाँ होती है? Underground होती है, but root जो है वो plant को बहुत तरीके से help करती है. Now, what do roots do? First, hold the plant in place. So बच्चों क्या होता है? Root anchor करती है plant को in the soil so it doesn't get blown away. इसका मतलब roots ने plant को soil के अंदर tightly hold करके रखा हुआ है so that अगर कोई बहुत तेज हवा आए तो plant जो है वो गिर ना जाए या फिर जब बहुत तेज बारिश हो तब भी plants ना गिर जाए. Then बच्चों सेकेंड, इट एब्जॉर्ब्स वाटर. रूट क्या करते हैं? रूट वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल एंड देन प्लांट्स को जो है वाटर मिल जाता है जिसकी वजह से वो ग्रो करते हैं एंड हेल्दी रहते हैं. देन रूट्स क्या करते हैं? वाटर के साथ साथ दे ऑल्सो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स. सो बच्चों, न्यूट्रिएंट्स को भी कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट्स. एंड इसकी वजह से प्लांट्स जो है वो ग्रो कर पाते हैं. देन रूट स्टोर फूड. इसका मतलब some roots store extra food for the plant, especially in winters when the plants can't make as much food.
ना बच्चों, जैसे कि हमारे मदर्स क्या करते हैं, जब घर में ज्यादा खाना बन जाता है, सो दे स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन द फ्रिज. सिमिलरली जब प्लांट्स के पास एक्स्ट्रा खाना होता है, सो दे स्टोर देयर फूड. एंड बच्चों, रूट्स जो है वो फूड को स्टोर करके रखती है, एंड इट स्पेशली हेल्प्स प्लांट्स इन द सीजन ऑफ विंटर, क्योंकि विंटर में ज्यादा सनलाइट नहीं होती है, सो दैट मीन्स प्लांट्स ज्यादा खाना नहीं बना पाते. देन लेट्स नो टाइप्स ऑफ रूट्स. सो बच्चों, हमारे पास दो तरीके के रूट्स होते हैं. फर्स्ट हमारे पास है टैप रूट. टैप रूट कैसी होती है? टैप रूट्स जो है वो लार्ज होती है, थिक रूट होती है, जो कि स्ट्रेट ग्रो करती है इनटू द ग्राउंड. एंड बच्चों, स्मॉलर रूट्स ग्रो आउट फ्रॉम द टैप रूट. बच्चों, इस तरीके से स्मॉलर रूट्स जो है वो टैप रूट्स के बाहर निकल रही होती है. Now, examples of plants which tap roots are carrots, radishes and dandelions. So बच्चों, examples of tap root क्या होने वाले हैं? Carrot and radish. Then we have fibrous root. So fibrous root is made up of many small roots that spread out in all the directions. So बच्चों, fibrous roots किसकी बनी होती है? बहुत सारी छोटी छोटी roots की बनी होती है, जो कि spread हो रखे होते हैं सारे के सारे directions में. And बच्चों, usually these roots are thin and don't go very deep into the ground. And बच्चों, ये roots कैसी होती है? काफी ज्यादा thin होती है, and ये ज्यादा deep नहीं जाती है ground के अंदर. Examples of plants with fibrous roots वो क्या होते हैं? Grass, wheat and rice. So fibrous roots के example grass, wheat and rice. So बच्चों, ये रहा हमारे पास टैप रूट एंड ये रही हमारे पास फाइब्रस रूट. सो बच्चों, यहाँ पे देखो टैप रूट्स कैसी हैं? काफी ज्यादा थिक है, एंड इनके अंदर से स्मॉल रूट्स जो है वो निकल रही है. वेयरएज फाइब्रस रूट्स कैसी हैं? ये बहुत सारे नंबर्स में होती हैं, एंड ये काफी ज्यादा थिन होती है. Now, next we have an amazing fact. Some plants like mangroves have special roots that grow above the ground or water to help the plant breathe in swampy areas where the soil is too wet. तो बच्चों, मैंग्रोव ट्रीज जो होते हैं उनके पास कैसी रूट्स होती है? स्पेशल रूट्स होती है, जो कि ग्राउंड के अबव ग्रो करती है इस तरीके से. And why the roots are growing above the ground? So that the plant can breathe in air in the swampy areas जहाँ पे soil जो है वो काफी ज्यादा wet होती है. Now बच्चों, next type we have shoot. तो shoot is the part of the plant जो grow करता है above the ground, and ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट से मिलकर बना होता है, जैसे कि स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. एंड बच्चों, हर पार्ट का अपना अपना एक स्पेशल फंक्शन होता है दैट हेल्प्स प्लांट टू सर्वाइव एंड ग्रो. So first we have stem. Stem is very important part of a plant. It acts like plant's backbone because it helps plant to stand straight and grow towards the sunlight. Now बच्चों, stem में भी हमारे पास होती है woody stems, and woody stems are strong, hard and usually brown. These stems are found in trees, shrubs and some large plants. Example, oak trees, rose bushes and grapevines. Then we have soft stems. And बच्चों, soft stems के लिए we have another name, herbaceous stems. So बच्चों, soft stems को हम लोग और किस नाम से बोलते हैं? herbaceous stems. and ये कैसी होती हैं? green, soft and easy to bend. These stems are usually found in smaller plants like vegetables, herbs and flowers. Example, tomato plant, mint and daisies. Now बच्चों, next we have weak stems. And weak stems के अंदर कौन आता है? Climbers. So बच्चों, some plants are very very weak that they cannot stand straight on their own. उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? Climbers. They need support to stand straight, and they get those support from the other objects that are present around the plant. For example, they can take the support of wall. And बच्चों, examples of climbers are beans, peas and money plants. Now बच्चों, next type we have weak stems, and इनके अंदर कौन आते हैं? Creepers. बच्चों, creepers are also very very weak that they grow along the ground. बच्चों, creepers cannot take help of some other object because their fruits are very heavy that they cannot stand up straight.
These stems spread out horizontally and can produce new plants where they touch the soil. Example of creepers are pumpkin plants and watermelon. Then functions of stem. So बच्चों स्टेम के फंक्शन क्या होंगे? इट सपोर्ट्स द प्लांट, बिकॉज प्लांट जो है वो स्टेम की वजह से ही सीधा खड़ा रहता है एंड सब सारी लीव्स को जो है वो सनलाइट मिलती है, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो अपना फूड खुद बना सकता है। देन स्टेम क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को। सो बच्चों स्टेम जो है वो एक स्ट्रॉ की तरह है, जिसके अंदर से वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं। देन स्टेम क्या करती है? स्टेम स्टोर करती है फूड को भी। सो बच्चों जैसे कि पोटैटोज, ये स्टोर करते हैं फूड को और इनको हम दोबारा से बाद में क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव लीव्स, एंड लीव्स आर द ग्रीन पार्ट्स दैट ग्रो ऑन द स्टेम्स ऑफ द प्लांट। सो बच्चों लीव्स कैसी होती हैं? ग्रीन कलर की होती है। एंड लीव्स कम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। अ लीफ हैज 3 मेन पार्ट्स। The blade, which is the big flat part that catches sunlight. So बच्चों ये रहा ब्लेड जो कि क्या करता है? सनलाइट को कैच करता है। Then we have petiole, which is like a little stick and attaches the blade to the stem. Then बच्चों ये रहा petiole जो कि क्या करता है? ब्लेड को अटैच करता है with the stem. And veins, which are like tiny roads that help water and food travel inside the leaf. एंड बच्चों ये रहा वेन्स जो कि क्या करती हैं? एक रोड्स की तरह होती है, जिनके ऊपर फूड एंड वाटर जो है वो लीव्स तक जा रहा होता है और लीव से आ रहा होता है। देन फंक्शंस ऑफ लीव। तो बच्चों लीव्स के 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। फर्स्ट कि वो फूड बनाती हैं बाय यूजिंग सनलाइट, एयर एंड वाटर, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। सेकंड बच्चों वो क्या करती हैं? दे हेल्प द प्लांट ब्रीथ by using air to make food and giving out oxygen which we need to breathe. तो बच्चों सेकेंडली लीव्स क्या करती हैं? ब्रीथ करती है कार्बन डाइऑक्साइड को, हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती हैं एंड उस कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से वो लोग अपना खाना बनाते हैं। देन खाना बनाने के बाद वो ऑक्सीजन को रिलीज आउट करती हैं, सो हम लोगों को ऑक्सीजन मिल जाती है। Now बच्चों an amazing fact. Did you know in the autumn seasons leaves can change into beautiful colors like red, yellow and orange before they fall off the tree? So बच्चों autumn season के टाइम पे क्या होता है? leaves जो है वो beautiful colors में change हो जाती है, red, yellow, orange गिरने से पहले। Then we have flowers. सो बच्चों फ्लावर्स कैसे होते हैं? फ्लावर्स कलरफुल पार्ट्स होते हैं प्लांट का एंड इनके डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, जैसे कि रेड, येलो, ब्लू और पिंक एंड बहुत सारे कलर्स हो सकते हैं। फ्लावर्स जो है वो खाली प्रिटी ही नहीं होते बट उनकी कुछ इंपॉर्टेंट जॉब्स भी होती है। सो बच्चों फंक्शन ऑफ फ्लावर क्या है? मेकिंग सीड्स। अब बच्चों मेन जॉब ऑफ फ्लावर क्या है? इज टू मेक सीड्स। सीड्स ग्रो होती है न्यू प्लांट्स के अंदर, सो फ्लावर्स हेल्प द प्लांट्स हैव बेबी प्लांट्स। सो बच्चों फ्लावर्स जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं? फ्रूट्स के अंदर। फ्रूट्स के अंदर होती है सीड्स एंड बच्चों सीड्स के अंदर ही क्या होता है? एक न्यू प्लांट होता है। सो हम बोल सकते हैं कि फ्लावर्स क्या प्रोड्यूस करवाते हैं? एक बेबी प्लांट प्रोड्यूस करवाते हैं। Then second function, attracting helpers. Flowers are colorful and smell good to attract bees, butterflies and other insects. अब बच्चों फ्लावर्स इतने ज्यादा कलरफुल होते हैं और उनके अंदर से इतनी अच्छी स्मेल आ रही होती है कि वो अट्रैक्ट करवा देते हैं इंसेक्ट्स को अपनी तरफ, जैसे कि बटरफ्लाईज हो गए एंड बीज हो गए। अब ये हेल्पर्स जो है वो विजिट करते हैं फ्लावर्स को ताकि उनको नेक्टर मिल सके, जो कि काफी ज्यादा स्वीट लिक्विड होता है। But when they do this, they also move pollen from one flower to another. This helps flowers make seeds. So बच्चों होता क्या है? इंसेक्ट्स आते हैं फ्लावर्स के पास कि उनको मिलेगा स्वीट स्वीट नेक्टर, बट इसी तरीके से फ्लावर क्या करता है? फ्लावर पॉलेंस को चिपका देता है इंसेक्ट्स की बॉडीज पे एंड इसकी वजह से पॉलेंस जो है वो दोबारा से एक न्यू प्लांट को बना देते हैं। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव फ्रूट्स एंड फ्रूट्स कहाँ से ग्रो होते हैं? फ्रूट्स बनते हैं फ्लावर से। फ्रूट्स के अंदर सीड्स होती है एंड बच्चों फ्रूट्स जैसे कि मैंगो एंड एप्रिकॉट इनके पास एक ही सीड होती है,
बट बच्चों फ्रूट्स जैसे कि एप्पल एंड ऑरेंज इनके पास थोड़ी ज्यादा सीड्स होती है। एंड बच्चों पपाया एंड वाटरमेलन इनके पास तो बहुत सारी सीड्स होती हैं। नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव सीड। तो सीड के अंदर क्या होता है? सीड के अंदर होता है एक बेबी प्लांट एंड बच्चों इट ऑल्सो हैज फूड स्टोर्ड फॉर द बेबी प्लांट। तो सीड के अंदर बेबी प्लांट तो होता ही है बट उसके साथ साथ उस बेबी प्लांट के लिए फूड भी स्टोर हो रखा होता है। When the seed gets proper sunlight, air and water, it grows into a new plant. And बच्चों जब इस सीड को sunlight, air and water मिल जाएगा तो वो एक न्यू प्लांट के अंदर ग्रो हो जाएगा। फंक्शंस ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। सो बच्चों फ्रूट क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं सीड्स को। फ्रूट्स एंड सीड्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं बर्ड्स को एंड देन वो क्या कर सकते हैं? इन सीड्स को स्प्रेड कर सकते हैं। फ्रूट्स एंड सीड्स आर ऑल्सो ईटन बाय अस। एंड बच्चों फ्रूट्स एंड सीड्स को तो हम लोग भी खाते हैं। नाउ बच्चों लेट्स क्विकली रिवाइज। प्लांट्स क्या है? लिविंग थिंग्स जिनको क्या चाहिए होता है? एयर, वाटर एंड सनलाइट। ग्रो करने के लिए रूट हमारे प्लांट्स को होल्ड करके रखती हैं एंड एब्जॉर्ब करती है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को। शूट जो है वो क्या करता है? वो अबव द ग्राउंड होता है एंड ट्रांसपोर्ट करवाता है फूड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का। रूट्स जो है वो टैप रूट होती है एंड फाइब्रस रूट भी होती है। स्टेम्स हमारे पास वुडी, सॉफ्ट, वीक बहुत तरीके की हो सकती है। लीव्स जो है वो यूज करते हैं सनलाइट जिससे वो अपना खाना खुद बना सकते हैं एंड फ्लावर्स अट्रैक्ट करते हैं हेल्पर्स जैसे कि बीज जो कि क्या करती हैं? सीड्स बनाती हैं। सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।